Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as Indian Express. But before I start today's Daily News Analysis, first I would like to wish you a best of luck for your upcoming ALET examination. I believe that it is going to be a very easy paper for all of you if you have been a serious candidate this year for your CLAT examination. So whatever shortfalls have been there in the CLAT examination, I am very sure that you can fulfill it in your ALET exam also. Okay, so now without wasting any time, let's start with today's news analysis. And again, as has been the custom for the last few days, today's analysis is only going to be mainly focusing on those topics which are going to be important for ALET also. Okay, so ALET, they are important. Obviously, they have long-term implication. These are topics which are going to be important irrespective of in which year you are giving your CLAT examination or your ALET examination. Okay, so let's start with the first important news from the Hindu newspaper. So the first news is amid high inflation, RBI keeps repo rate at 6.5%. So your RBI has a particular committee known as Monetary Policy Committee. This committee, which was created in 2016 with the sole objective of deciding the different interest rates in the economy. Okay, so this MPC is responsible for deciding the interest rate, and it is on the basis of this interest rate that how what is the objective of the government or what is the objective of central bank we come to know. So let's say here the RBI has decided that repo rate, which is a short form of repurchase obligation, and this is the main rate at which your RBI gives interest loans to or gives loans to your different banks, different scheduled banks in the Indian banking system. So if it has decided that now it is going to keep the repo rate at 6.5%, there have been clamor in the Indian market that this repo rate should be reduced because if this repo rate is reduced, then only your different banks are going to reduce their rate, and if it is at a very high level or it is not changed or it is kept at the same level, then the interest or the number of loans in an economy are not going to rise up. Okay, so there was a clamor about it, but as of now, because of high inflation जिसको हम महंगाई दर बोलते हैं, because of high inflation your RBI has decided to keep the repo rate intact at 6.5%. So what exactly is inflation is known as general increase in prices of goods and services. Okay, so it's a general increase in prices in an economy. तो कोई चीज अगर लास्ट ईयर 100 रुपए की थी तो इट इज बट गिवन दैट नेक्स्ट ईयर ये शायद 106 107 रुपए तक की हो जाएगी, विच इज बेसिकली विजिबल बाय द इंटरेस्ट रेट. जैसे अभी बोला जा रहा है 4.8% कुछ इन्फ्लेशन प्रोजेक्टेड है. लास्ट ईयर जो अभी आपके लास्ट क्वार्टर थे इस ईयर के, इसमें जो इन्फ्लेशन था वो 6.6 6.7 तक गया था. Okay, and which is not a very good inflation rate for any developing country like India because it's very high, specifically जहाँ पे बहुत सारे लोग लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए इतना हाई इन्फ्लेशन रेट इज नॉट गुड फॉर देयर लिविंग स्टैंडर्ड्स. बट 4.8 इज एक्चुअली मैनेजेबल. ठीक है, तो जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस होता है इंडिया में. हम जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट रिटेल इन्फ्लेशन. ये 4.8% एक्सेट्रा जो आपको वैल्यूज दिख रही हैं, ये सब रिटेल इन्फ्लेशन शो करता है, विच इज इन्फ्लेशन एट द रिटेल लेवल और एट द कंज्यूमर लेवल, जो हम डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड. तो ये एक इंडेक्स है जिसके में हम डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज की एक बास्केट बनाते हैं और उसको हम मेजर करते हैं कि उसके अंदर में जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हुई हैं डिक्रीज हुई हैं, और उस बेसिस पे हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन जो है, पहले 100 रुपए का सामान मिलता था टोटल, अब 104 105 का मिलने लगे, विच मीन्स की 4.5% कुछ आपकी इन्फ्लेशन है. ओके, और हम जब ये तो रियल इन्फ्लेशन होता है, जब नॉमिनल इन्फ्लेशन होता है जब हम उसी टाइम पीरियड मतलब विदाउट इंक्लूडिंग द इमीडिएट राइज इन प्राइस, अगर हम सिर्फ उसको ही देख रहे हैं तो हम नॉमिनल इन्फ्लेशन देखते हैं. रियल इन्फ्लेशन हम एक पर्टिकुलर ईयर से जज करते हैं, विच इज बेसिकली द बेस ईयर. तो बेस ईयर जो इसके अंदर में है वो है 2012. तो 2012 में क्या प्राइसेस थी उससे कंपेयर करते हुए हम अभी का इन्फ्लेशन रेट आइडेंटिफाई या फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ पे रेपो रेट हमने 6.5 रखा है, विच कैन बी कॉल्ड एज अ न्यूट्रल स्टांस. ठीक है, इसको हम न्यूट्रल स्टांस भी कह सकते हैं. ये न्यूट्रल रखा है, कोई चेंज नहीं है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली बिकॉज अभी आपके इन्फ्लेशन हाई है, इसलिए आपकी रेपो रेट को यहाँ पे ना तो इंक्रीज कराए ना डिक्रीज कराए. डिक्रीज करते हो तो इंटरेस्ट, आपके जो लोन्स होते हैं उनका नंबर इंक्रीज होता है, लोन इंक्रीज होता है, नंबर इंक्रीज होता है, विच मीन्स मार्केट में पैसा ज्यादा जाता है, मार्केट में पैसा ज्यादा जाता है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है. इस वजह से अभी जो रेपो रेट है उसको रिड्यूस नहीं किया गया है.
Okay, so this is what is there in your first particular news. MPC, अगर you want to discuss monetary policy committee, I think ये हमें डिस्कस करनी चाहिए, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो हमने 2016 में क्रिएट करी थी, आरबीआई के अंदर ही ये बॉडी कह सकते हो आप, आरबीआई एक्ट के अंदर में क्रिएटेड बॉडी है। इसमें 3 आरबीआई के गवर्नर्स होते हैं और 3 इसके अंदर में गवर्नमेंट के नॉमिनीज होते हैं, नॉट गवर्नमेंट मेंबर्स बट गवर्नमेंट के नॉमिनीज, यानी गवर्नमेंट हो सकता है किसी प्रोफेसर को या किसी एक्सपर्ट को जो बेसिकली इंटरेस्ट रेट से या मनी मार्केट से इनसे डील करता है, उसको इसका मेंबर बनाए। ये 6 मेंबर्स मिलके डिसाइड करते हैं कि जो रेपो रेट है आपकी या आपकी सीआरआर है, जैसे इस बार सीआरआर जो है आपकी कैश रिजर्व रेशियो, उसको थोड़ा सा 4.5 से 4 पे करा है, उसको उसको कम करा गया है। तो यहाँ पे जो रेपो रेट है या सीआरआर है, इसको यहाँ पे इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, एसएलआर भी ऐसी एक वैल्यू होती है। ये सारा डिसीजन आपका एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही लेता है और इनका मेन ऑब्जेक्टिव है इन्फ्लेशन कंट्रोल। दैट्स व्हाई यू कैन सी कि ग्रोथ पे इनका फोकस नहीं है, मेन फोकस इज इन्फ्लेशन कंट्रोल, और दे वांट कि इन्फ्लेशन जो है वो 4% पे होना चाहिए और 2% से 6% के इन्फ्लेशन रेट में ये मूव कर सकता है। ऑन दिस बेसिस दे डिसाइड कि हमें रेपो रेट क्या रखनी है, रेदर देन डिसाइडिंग ऑन कि हमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या रखने हैं। इनका मेन डिसीजन जो होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो इनके पास रहता है, वो होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल। अगर इन्फ्लेशन 2 से 6% के बैंड में ये मैनेज कर सकते हैं, then they can do something with the repo rate and other rates. Otherwise they do not try to increase or decrease the repo rate accordingly. Okay, so this is your first important news. I believe this is also important for your ALET examination, simply because that in ALET examination your basic concepts of economy also come. Next पे मूव करते हैं। मिस्री सेट टू लैंड इन ढाका ऑन मंडे एज टेंशन माउंट। सो आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर कि अभी इंडिया बांग्लादेश में जो उनके जो रिश्ते हैं, उनके जो रिलेशंस हैं, उसमें बहुत टर्मोइल चल रहा है एंड बहुत सारे टेंशन माउंट्स हो रहे हैं। इट इज स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर इंसिडेंट जो नवंबर 25 को हुआ था। इस्कॉन टेम्पल जो होता है उसका जो मेन, उनके जो मेन महंत हैं वहां के, उनको वहां पे अरेस्ट कर दिया गया। तो उस वजह से भी प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं और उसकी वजह से प्रोटेस्ट इंडिया में भी स्टार्ट हो गए अगेंस्ट द बांग्लादेशी इंटरिम गवर्नमेंट। सो एक अगर हम टाइमलाइन डिस्कस करें तो यू रिमेंबर, यू शुड नो दिस कि लास्ट इस ईयर के बिगनिंग ऑनवर्ड्स ही आपके आई वुड से मार्च अप्रैल से, मार्च से लेके अगस्त तक वहां पे आपके 2024 में आपके बांग्लादेश के अंदर में प्रोटेस्ट चल रहे थे, स्टूडेंट प्रोटेस्ट टू बी एग्जैक्ट। देयर वाज स्टूडेंट प्रोटेस्ट गोइंग ऑन इन बांग्लादेश, और स्टूडेंट protest was basically because of the reservation policy which was being followed. Because of this these protests became violent and 5th of August को यहाँ पे शेख हसीना जो उस टाइम वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, उनको वहां से रन अवे करना पड़ा। शी हैज नॉट, मतलब मैनी से हर सन, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि शी हैज नॉट रिजाइंड, एंड कहीं पे ऑफिशियली नहीं बट इट इज बिलीव कि हसीना रिजाइंड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट on 5th of August and then he took refuge in India. So currently she is in India. और इस वजह से भी बिकॉज बांग्लादेश इसके बांग्लादेश भी इंडिया से एक्सट्रेडिशन की भी डिमांड कर रहा है ऑफ शेख हसीना। सो इस वजह से भी इशू है। 5th अगस्त को ये होता है। अगस्त ऑफ 8 को वहां पे एक इंटरिम गवर्नमेंट क्रिएट करी जाती है, इंटरिम गवर्नमेंट विच इज नॉट, आई वुड डोंट से हेडेड बाय, बट इसके चीफ एडवाइजर जो हैं वो हैं मोहम्मद यूनुस। ओके, सो यहाँ पे कुछ प्रेसिडेंट या कुछ और नहीं बोला गया उन्हें, उन्हें सिर्फ चीफ एडवाइजर बोला गया है। इसके बाद अभी जो करंटली इश्यू स्टार्ट हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ नवंबर 25, आपके वहां के हिंदू लीडर जो इस्कॉन टेम्पल के लीडर हैं, चिन्मय कृष्ण दास। So he was traveling from on an airplane. He was supposed to travel on an airplane, so he was taken into custody at the airport. तो and he was only traveling inside Bangladesh. चिन्मय कृष्ण दास उनको यहाँ पे अरेस्ट करा जाता है, जिससे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इसके बाद से अब आपके फॉरेन सेक्रेटरी जो है, सो फॉरेन सेक्रेटरी का नाम भी हमें यहाँ पता पड़ता है, इट इज विक्रम मिसी। यूजुअली जो सेक्रेटरीज होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, वो हाईएस्ट ऑफिशियल, हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल होते हैं या हाईएस्ट आईएएस ऑफिसर ही होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के। तो फॉरेन डिपार्टमेंट्स के अंदर में फॉरेन सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट पोस्ट। ओके, सो आई थॉट कि इसके अंदर में हम इस्कॉन टेम्पल फिर से आया है, तो इस्कॉन टेम्पल आपको पता होना चाहिए, या इस्कॉन मूवमेंट क्या है। तो इस्कॉन स्टैंड्स फॉर योर इंटरनेशनल, वेरी फेमस मूवमेंट, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ इस्कॉन मूवमेंट। और इस्कॉन मूवमेंट के फाउंडर, द वेरी फेमस, नाउ ही इज नो मोर विद अस, बट इट वाज श्रीला भक्ति वेदांता।
वेदांता, श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपद। ओके, सो ये पर्टिकुलर इसके फाउंडर थे। सो ही स्टार्टेड दिस मूवमेंट फ्रॉम इंडिया, देन ही वेंट टू वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेसिफिकली टू यूएस। देयर इस्कॉन बिकम वेरी फेमस एंड इट लेड टू द लॉन्च ऑफ द हरे कृष्णा मूवमेंट, Hare Krishna movement. And you would, if you would see people from ISKCON, you would see they are continuously chanting this Hare Krishna only. So this was founded in 1966. ठीक है, so it was long back 1966. और इसीलिए जो आपका इस्कॉन मूवमेंट है इसको ही हम हरे कृष्णा मूवमेंट भी बोलते हैं। और मेजरली they follow the teachings of, or they follow the worship style of your प्रभु चैतन्य। ओके, प्रभु चैतन्य और कृष्ण चैतन्य जो आपके असम, और वहां से इन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करा था जिसको हम बोलते हैं गौड़ीय वैष्णविज्म, गौड़ीय वैष्णविज्म, विच इज अ हिंदू रिलीजियस मूवमेंट। हरे कृष्णा मूवमेंट जो सेम यही है। प्रभु चैतन्य ने आपके गौड़ीय वैष्णविज्म इज द स्कूल, जिस इस पर्टिकुलर मूवमेंट को गौड़ीय वैष्णविज्म बोलते हैं, जो प्रभु चैतन्य ने स्टार्ट करा था। और जो इस्कॉन मूवमेंट भी है आपका, ये भी उसी से ही इंस्पायर्ड है। ओके, okay, so let's move to the next news. Next news, no card, no work, MG Narega's deletion hit rural workers hard. तो यहाँ पे because of digitalization जो आपके वर्कर्स हैं, स्पेसिफिकली द पुअर क्लास, द रूरल क्लास, दैट इज गेटिंग अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस, या उनकी लाइफ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो रही है बिकॉज दे आर नॉट अप टू डेट विद द टेक्नोलॉजी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी को शॉर्ट कमिंग्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम which they are facing is their matching in biometrics। तो थंब इम्प्रिंट जो होते हैं दे डू नॉट मैच, एंड इस वजह से उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कैंसिल हो जाता है, एंड इस वजह से जो बेनिफिट होते हैं कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स के, दे आर नॉट एबल टू गेट बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम। तो यस, दिस इज सम प्रॉब्लम। सो यहाँ पे एमजी नरेगा स्कीम आ गई है। तो आई एम श्योर यू नो द फुल फॉर्म ऑफ दिस। इट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ओके, आई रिपीट, इट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो आपके एमजी नरेगा एक्ट, नरेग एक्ट में आपका हुआ था 2005 में। सो 2005 में हम ये पर्टिकुलरली एक्ट लाए थे, जिसके अंदर में हमने ये आपकी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को लॉन्च किया था इन 2005। रिमेंबर, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में ये फंक्शंस करती है, एंड इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया के अंदर में हमने एक गारंटीड स्कीम करी है जो राइट टू वर्क को गारंटी करता है, बट ओनली टू रूरल पीपल ऑफ इंडिया। तो दिस इज अ स्कीम विच इज ओनली फॉर रूरल एरियाज एंड नॉट जस्ट फॉर नॉट फॉर अर्बन एरिया, से रूरल एरियाज के लिए है। सो रिमेंबर दिस फैक्ट दैट दिस इज ओनली फॉर रूरल एरियाज। मेजरली इसके अंदर में क्या होता है, सो इट इज गारंटीज मिनिमम 100 days of unskilled manual labor। अनस्किल्ड मैनुअल लेबर जो होती है टू एन एडल्ट member of an eligible rural household। So remember, not every person in rural area, but एक पर्सन फ्रॉम एवरी रूरल हाउस होल्ड, उसको यहाँ पे मिनिमम 100 days का काम मिलेगा। ऑब्वियसली दैट पर्सन हैज टू बी मिनिमम ऑफ 18 years, 18 years प्लस ही हो गए, नहीं तो वो चाइल्ड लेबर में कॉल हो जाएगा। एंड अगर आपको काम नहीं मिलता है तो उस सिचुएशन में आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस में मिलेगी, अगर 15 days के अंदर में आपको काम नहीं दे पाते हो। रिमेंबर, 15 days के लिए नहीं, कंफ्यूज मत हो जाना, इसको नोट्स में ढंग से लिखना कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आपको तब मिलती है अगर आप रजिस्टर करते हैं एमजी नरेगा के अंदर में, और आपको 15 days के अंदर में वो कोई वर्क अलॉट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद देयर इज दिस सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट भी इसकी कराई जाती है कि बेसिकली जो भी वर्क नरेगा के अंदर में करा जा रहा है उसका सोसाइटी के ऊपर पे क्या बेनिफिट है, उसका कुछ लॉस है क्या, हाउ इज इट गोइंग टू बेनिफिट द सोसाइटी इन जनरल। और ये जो पर्टिकुलरली सोशल ऑडिट होती है ये एक बॉडी कराती है, और इट इज यूजली द ग्राम सभा इन द रूरल एरियाज। ओके, और करंटली इसमें अब इश्यूज क्या आ रहे हैं, नेम डिलीशन। यहाँ पे देख रहे हैं आप, नो कार्ड नो वर्क, तो आपका एक जॉब कार्ड बनता है, आधार जॉब कार्ड ऑफ नरेगा जॉब
कार्ड बोल सकते हो, नरेगा कार्ड। अगर आपके पास में वो कार्ड होता है और उसकी डिटेल्स आपकी मैच करती हैं डिजिटल सिस्टम के ऊपर पे, तो ही आपको इसके अंदर में वर्क मिलता है। तो बिकॉज ऑफ देयर डिस्क्रिपेंसीज इन द जॉब कार्ड्स, मैनी पीपल और मैनी रूरल पीपल जो नरेगा के जॉब कार्ड होल्डर्स थे, उनके नेम जो हैं वो आपके डिलीट हो गए। इस वजह से अगर वो काम मांगने जाते हैं तो उनको काम नहीं मिलता है। और ये प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज एक हमने अभी रिसेंटली एक इसी साल से एक चीज स्टार्ट करी थी, विच इज आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। तो इसमें हम मिडिल मैन को रिमूव करने के लिए व्हाट वी आर डन, कि जो एक पर्सन का जॉब कार्ड होता है, जो जॉब कार्ड होता है उसको हमने उसके आधार से कनेक्ट कर दिया है, और आधार कार्ड से उसका जो बैंक अकाउंट है और उसका जो मोबाइल है उसको हमने कनेक्ट कनेक्ट कर दिया है। तो अब अगर किसी पर्सन का जॉब कार्ड आधार से लिंक्ड है, तो उसका जो पैसा है वो डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में चला जाएगा, या तो आप आधार पे भेज दीजिए या फिर आप उसके मोबाइल नंबर पे भेज दीजिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका जॉब कार्ड आधार से कनेक्टेड नहीं है, या फिर आधार कार्ड में बैंक अकाउंट कोई उसके अंदर में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, और या फिर बायोमेट्रिक्स के अंदर में, तो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम में आपको थंब इम्प्रिंट या आइरिस स्कैन एक्सेट्रा करना होता है। यूजुअली थंब इम्प्रिंट ही यूज होता है, हैंड आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, तो अगर वो मैच नहीं होते हैं तो यू डू नॉट गेट एनी पेमेंट। पेमेंट छोड़िए, अब आपको कोई वर्क ही नहीं मिल पा रहा है तो पेमेंट कहां से होगा उसके लिए। ठीक है, तो दिस आर सम इश्यूज विच द वर्कर्स आर फेसिंग इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एमजी नरेगा सिस्टम। Okay, let's move to the next news. Okay, so the next news is Trump administration deserves a lot of credit for Quad, says Jaishankar. So again यहाँ पे अभी आपका जो Quad है वो फिर से न्यूज में चल रहा है। अभी रिसेंटली इसकी सक्सेसफुल 6 क्वाड समिट हुई है। ओके, इट इज अ 6 क्वाड समिट। बट अगर इन पर्सन मीटिंग की बात करें जहां पे आपके सारे जो लीडर्स थे वो हुए, तो उस टर्म्स में इट इज गोइंग टू बी द 4th क्वाड समिट। ओके, सो इस तरीके से समझ सकते हो 6 क्वाड समिट टोटल हो चुकी हैं, बट इन पर्सन ये 4th क्वाड समिट है। तो अगर if I talk to you about the history of Quad, so this particular initiative was launched by Shinzo Abe. 2007 में he conceptualized the concept of Quad. Basically, it was conceptualized to counter China only. चाइना क्योंकि राइज कर रहा था इंडो पैसिफिक के अंदर में, तो उसके के काउंटर में क्वाड को क्रिएट करने का इट वाज शिंजो एब्स आइडिया। शिंजो एब्स आइडिया। और ओरिजिनली इसके 4 मेंबर्स थे, करंटली वो जो 4 मेंबर्स हैं 2007 में भी यही थे। इट वाज इंडिया, इट वाज यूएस, देयर वाज योर जापान, and then there was Australia. But by 2008, Australia developed cold feet, and Australia withdrew from this particular अलायंस बिकॉज उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेड इंटरेस्ट थे दे वर वेरी मच इंटरलिंक्ड विद चाइनास, और उस वजह से इट डिसाइडेड कि इट हैज नथिंग टू विन फ्रॉम अ क्वाड लाइक ग्रुपिंग, बट इट हैज मोर टू लूज फ्रॉम अ क्वाड लाइक ग्रुपिंग। सो दैट्स व्हाई इन 2008 इट डिसाइडेड टू विथड्रॉ फ्रॉम इट। आल्सो यू शुड रिमेंबर दिस आल्सो कि ये इसका बैकड्रॉप था कि 2003 में आपकी जो सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, विच लेड टू अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। उस टाइम के अंदर में उसके बाद में इट वाज इस बैकड्रॉप के अंदर में इसका इस टाइप का एक इन्विजन किया गया था, बिकॉज 2003 सुनामी के अंदर में these countries, India, US, Japan, Australia, they came together and helped out other countries in getting in recovering from the recovering from the harm caused by the tsunami. Obviously, India, Japan, Australia, these countries were also impacted by the tsunamis of that 2003. ओके, तो 2008 में विड्रॉ किया, बट इसके बाद इसकी वापस से रिव्यू मीटिंग हुई, इट वाज रिवाइव्ड और इन 2017, एंड फाइनली इट इज द ईयर 2021 जब इसकी फर्स्ट फॉर्मल मीटिंग हुई। तो फर्स्ट इन पर्सन जो आपकी समिट हुई है, फर्स्ट फॉर्मल समिट, इन पर्सन समिट, दैट हैपेंड इन 2021। सो इसलिए वी आर सीइंग 2024 में जो अभी आपकी फोर्थ आपकी ये क्वाड फॉर्मल समिट है, और 6th इन टोटल समिट हो जाएगी आपकी, ठीक है। और 6 क्वाड समिट आपकी हुई है इन विल्मिंगटन इन डेलावेयर। Wilmington, Delaware. You should know this कि this particular summit, Quad summit was supposed to take place in India, but because इस बार General Assembly का था and leaders were not free, and everyone was to visit US only at that particular period, so everyone decided to hold this. These 4 people decided to hold this particular meeting in US only this year. Next year it is going to be hosted by India. Okay, so इसके बाद में आपका ये 6 क्वाड समिट हुआ, एंड इसके अंदर में एक आई वुड से कि यू शुड रिमेंबर मून शॉट इनिशिएटिव है जो सर्वाइकल कैंसर के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ओके, सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। अपार्ट फ्रॉम इट, इफ यू कैन आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि क्वाड की मल्टीलेटरल एक्सरसाइज कौन सी है,
ठीक है, अ हिंट 1992 में ये स्टार्ट हुई थी एज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस. नाउ इट्स अ क्वाड मल्टीलैटरल एक्सरसाइज. सो इफ यू नो द आंसर यू कैन आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली टू रिड्यूस वाटर लेवल इन मुल्ला पेरियार डैम. सो मुल्ला पेरियार डैम भी आपका न्यूज में था पहले से, सो इट इज नॉट कि ये कुछ नई न्यूज है. इसलिए आई बिलीव कि दिस आल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर एलेट आल्सो एंड ऑब्वियसली फॉर नेक्स्ट ईयर बिकॉज दीज आर मतलब वेरी मतलब लंबे इश्यूज हैं, बहुत पुराने टाइम के इश्यूज हैं. ठीक है, सो व्हाट इज द मुल्ला पेरियार डैम? सो इट इज अ 126 ईयर ओल्ड डैम. 126 ईयर ओल्ड डैम है जो 1895 में कंस्ट्रक्ट किया गया था, विच मीन बिफोर इवन इंडिपेंडेंस. और ओरिजिनली इसका जो लाइफ था इट वाज ओनली 50 इयर्स, बट यू कैन सी कि इसको 126 इयर्स हो चुके हैं. एंड वर्ल्ड बैंक ने एक पर्टिकुलर अपनी रिपोर्ट भी पब्लिश करी थी, उसके अंदर में इट इट सेड कि जो मुल्ला पेरियार डैम है ये अब अनस्टेबल हो चुका है एंड इट कैन ब्रेक एनी टाइम. तो इतने पुराने डैम को कंटिन्यू करना इज नॉट गोइंग टू be favorable for the states which are having. So, but Mulla Periyar Dam is an interesting dam because Mulla Periyar Dam जो है, which is on कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स. एक मुल्लियार रिवर है आपकी और एक पेरियार रिवर है आपकी. पेरियार इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला, लाइफ लाइन ऑफ केरला भी बोला जाता है इसको. तो मुल्लियार और पेरियार की कॉन्फ्लुएंस पे है और दिस इज लोकेटेड इन केरलास इडुकी डिस्ट्रिक्ट. केरला की इडुकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में ये लोकेटेड है. बट इंटरेस्टिंगली दिस पर्टिकुलर डैम इज नॉट ओन्ड और मेंटेन्ड बाय केरला. दिस पर्टिकुलर डैम इज ओन्ड, मेंटेन्ड एंड यूज्ड इरिगेशन एक्सेट्रा या ऑपरेटेड बाय तमिलनाडु. तो केरला में बना हुआ डैम जो है इसको तमिलनाडु जो स्टेट है वो ऑपरेट करता है. एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका इश्यू जो होता है इट इज बेसिकली अबाउट द वाटर लेवल. सो वन स्टेट वांट्स कि इसका वाटर लेवल रिड्यूस होना चाहिए, द अदर स्टेट वांट कि इसका वाटर लेवल इंक्रीज होना चाहिए. स्पेसिफिकली तमिलनाडु वांट्स कि इसका वाटर लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए बिकॉज इट इज द वन जो इसको बेसिकली इरिगेशन के उसके लिए यूज करता है. एंड इट हैज चेंज द लाइव्स ऑफ फार्मर्स of that particular area because they are using water from Mulla Periya Dam from for their irrigation purposes. But 2014 में 19 के अंदर में आपके दो बार ऐसे केसेस, 2006 और 14 में केस हुआ एंड उसमें सुप्रीम कोर्ट सेड कि इसकी जो हाइट है, वाटर हाइट है, वो 142 फीट होनी चाहिए, नथिंग मोर नॉट लेस. बट इट वुड बी मोर देन इनफ कि ये 142 फीट ही होनी चाहिए. ओके, सो दिस इज व्हाट इज द कंटेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर डैम. आई थिंक एलेट के लिए अभी तो हमारे लिए इतना ही बहुत है. ओके, आगे मूव करते हैं. इंदिरा गांधी पीस प्राइज टू बी कन्फर्ड ऑन मिशेल बैलेट. तो आपका एक इंदिरा गांधी पीस प्राइज होता है विच इज नॉट गिवन बाय द इंडियन गवर्नमेंट बट इट इज गिवन बाय अ ट्रस्ट. सो ये जो ट्रस्ट है दिस इज ट्रस्ट नोन एज इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट. सो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है जो ये पर्टिकुलर जो अवार्ड है इसको एडमिनिस्टर करता है. ये जो अवार्ड है दिस हैज बीन लॉन्च्ड इन द ईयर 1986 ओनली. 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड. 1986 के अंदर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट ने इसको स्टार्ट किया था. इसके अंदर में प्राइज मनी होती है 25 लाख रुपीस प्लस अ साइटेशन. ओके, सो एक साइटेशन मिलता है एंड 25 लाख रुपीस आर प्रोवाइडेड एंड इट इज एन एनुअल अवार्ड. सो अपार्ट फ्रॉम फ्यू इंस्टांसेस यूजुअली हर साल ये पर्टिकुलर अवार्ड आपका इस तरह से दिया जाता है. किस फील्ड्स में दिया जाता है? सो इट इज गिवन इन द फील्ड ऑफ पीस. अगर कोई पीस का वर्कर है, कोई डिसआर्मामेंट पे वर्क कर रहा है, बेसिकली दिस आर्मामेंट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड ऑल्सो रिलेटेड इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट. ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट. तो इसका जो 2024 का आपका अवार्ड है दिस हैज बीन कन्फर्ड टू मिशेल बैचेलेट. आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्ट बट ये चिली से बिलोंग करती है, चिलियन प्रेसिडेंट रह चुकी हैं फॉर्मर एंड शी वाज आल्सो द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ यूएन वुमेन. शी हैज बीन आल्सो पार्ट ऑफ यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड अ प्रेसिडेंट एंड अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चिली आल्सो. सो इनका बहुत इलस्ट्रस करियर रहा है एंड शी हैज बीन एट द फोरफ्रंट व्हेन इट्स कम टू पीस इनिशिएटिव्स इन द वर्ल्ड. तो 2024 का इनको मिला है एंड फॉर दोस हु आर गिविंग एलेट टुमारो they should know the 2023 prize winners which were Daniel Daniel Barenboim, Daniel Barenboim and your Ali Abu Awad.
सो 2023 का जो अवार्ड था आपका, इट वाज अवॉर्डेड टू डेनियल बैरनबोइम एंड अली अबू अवध। बिकॉज 24 का तो आज ही आ रहा है, कल पेपर तो पब्लिश हो चुका, आपका प्रिंट हो चुका है, तो ऑब्वियसली 24 दे आर नॉट गोइंग टू एबल टू आस्क, बट 23 दे कैन आस्क। 24 इज गोइंग टू बी यूजफुल अगर आप आगे जाके अभी बाकी के जो ओलेट एग्जाम्स है, अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट है, स्लैट हो गया आपका एक्सेट्रा, उनको आप जब प्रिपेयर करोगे तब ये आपका काम का हो सकता है। ठीक है। Okay, so next पे move करते हैं. So I would say this is only a one liner, so that's why also it becomes important for your ALET examination. Shah slams Kerala government for delay in giving report on Wayanad disaster. So Wayanad disaster is basically the Wayanad landslide, which led to destruction of 2 or 3 villages itself. Many people lost their life in this particular landslide. This particular landslide took place on July of 30th of this year. और यहाँ पे you should know कि landslide था, तो that the immediate region was the heavy rainfall, but you should know what exactly is landslide. तो landslide होता है downward movement of earth. अर्थ कह लीजिए, अर्थ मतलब सारा अर्थ मटेरियल हो गया, रॉक, सॉइल, डिब्रिस, डाउन अ स्लोप, ऑन अ स्लोप, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन अ स्लोप, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर लैंडस्लाइड। तो ये वाली जो लैंडस्लाइड है ये भी इसी तरह से हुई है। लैंडस्लाइड एटलस जो है, लैंडस्लाइड एटलस जो है ये इश्यू करता है आपका, सो एक लैंडस्लाइड एटलस भी बनाई हमने। और व्हाट डज दिस लैंडस्लाइड एटलस शोज अस कि इंडिया के जो डिफरेंट रीजन्स हैं उसमें आपका लैंडस्लाइड प्रोननेस किस टाइप का है, सो ये लैंडस्लाइड एटलस हमें शो करता है। Another important fact for you is that India is among the top 5 landslide prone countries of the world. Obviously China is also in this list, वो भी बहुत सारा landslide prone है, and India is also one of the top 5 landslide proneness prone area of the world. And ये जो particular वायनाड landslide है ये वायनाड में हुई, वायनाड district is part of your the very famous Western Ghats, which is a series of mountains on the western coast of India. गुजरात से स्टार्ट होता है एंड अप टू तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, पुडुचेरी ऑल्सो हियर, पुडुचेरी भी यहाँ आ जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा आपका, गोवा आ जाएगा आपका यहाँ पे, महाराष्ट्र आ जाएगा एंड गुजरात। सो दीज आर द स्टेट जहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स आपके लोकेटेड है। तो ये वेस्टर्न घाट जो है ये एक इको सेंसिटिव रीजन है, तो इसको इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर करने की बहुत टाइम से डिमांड चल रही है। एंड टू फुलफिल दिस डिमांड 2011 के अंदर में वी क्रिएटेड अ कमिटी नोन एज गडगिल कमिटी। गडगिल कमिटी हमने बनाई थी, वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर आल्सो, एंड ये थोड़ी सी ओवर दे बिकेम ओवर जेलस एंड दे डिसाइडेड कि पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट्स को हमें ये से डिक्लेयर करने चाहिए और बहुत स्पेसिफिक एक्टिविटीज अलाउ करनी चाहिए। ऑब्वियसली ये सारी स्टेट्स हैं, दे वर नॉट, दे डिड नॉट एग्री विद दिस पर्टिकुलर डिमांड। सो 2013 में एक और कमेटी बनाई गई, कस्तूरी रंगन कमिटी। So Kasturi Rangan, who is a former ISRO chairman, he headed this committee and he stated, या this committee provided कि 37% जो रीजन है उसको इको सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए। और जो आपका आपका जो पर्टिकुलर वेस्टर्न घाट्स एरिया जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वहां पे कोई भी माइनिंग एक्टिविटीज, क्वेरिंग एक्टिविटीज एक्सेट्रा को हमें टोटली वहां पे स्टॉप कर देना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल। इसके अलावा कई लोग इस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स इसको मिस कर जाते हैं। 22 में भी एक पर्टिकुलर कमेटी बनाई गई थी, संजय कुमार कमेटी। संजय कुमार कमेटी भी बनाई गई थी आपकी, और ये जो संजय कुमार कमेटी है, दिस कमिटीज रिपोर्ट वाज नॉट हैज नॉट बीन मेड पब्लिक। तो नॉट पब्लिक है, बट दिस इज आल्सो अ कमेटी व्हिच इज रिलेटेड टू डिक्लेरेशन ऑफ एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट्स एज इको सेंसिटिव एरिया। एंड आल्सो यू शुड नो दिस कि आपका जो वेस्टर्न घाट्स है, इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आई एम लिविंग यू विद अ क्वेश्चन टू आंसर इट इन द कमेंट बॉक्स कि इंडिया के अंदर में टोटल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एंड इफ पॉसिबल यू कैन आल्सो गिव अ डिवीजन ऑफ कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड नंबर साइट्स। ठीक है, टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड देयर डिवीजन इनटू कल्चरल, नेचुरल एंड योर मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आप आंसर कर सकते हो। ओके, let's move to the next question, next news, which is Gyan Vapi Mosque Committee opposes petition against Places of Worship Act of 1991. तो Places of Worship Act है 1991 का, it's a very important piece of legislation because ये particular legislation simply ये कहता है कि जितनी भी religious places of worship है, जितनी भी religious places हैं, उनका जो भी रिलीजियस करेक्टर रहा है, वॉट एवर हैज बीन द रिलीजियस करेक्टर, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय रिलीजियस करेक्टर। तो लेट्स से देयर इज अ पर्टिकुलर हॉल, कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को हम एज अ टेम्पल ट्रीट करते हैं, तो इट्स द रिलीजियस करेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस इज ऑफ अ टेम्पल और अ हिंदू टेम्पल। या कोई पर्टिकुलर प्लेस है जिसको हम एज अ मॉस्क
की तरह यूज करते हैं या गुरुद्वारे की तरह यूज करते हैं या चर्च की तरह यूज करते हैं। तो जो भी ऐसा प्लेस ऑफ वर्शिप है जिसका रिलीजियस करेक्टर अगस्त 15 1947 को कुछ था, फॉर एग्जाम्पल टेम्पल था, मॉस्क था, गुरुद्वारा था, सो आफ्टर अगस्त 15 1947 इसका रिलीजियस करेक्टर वुड नॉट बी चेंज, इट कैन नॉट बी चेंज। ओके, एंड अगर कोई भी ऐसा केस लॉ आता है, कोई भी केस फाइल करा जाता है, फॉर टाइटल सूट फाइल किया जाता है टू चेंज द रिलीजियस करेक्टर, दैट वुड नॉट बी अलाउड, इट वुड नॉट बी अलाउड। ओके, सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो यहाँ पे ज्ञान वापी मॉस्क कमिटी जो है, बिकॉज ज्ञान वापी मॉस्क जो आपका वाराणसी में, इट इज ऑल्सो ऑन अ डिस्प्यूटेड साइट, और इसकी जो मॉस्क कमिटी है उसने पेटिशन जो आई है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए उसके अगेंस्ट में फाइल करा है। व्हाट इज दिस प्लेस, व्हाट आर द पेटिशन, सो दे आर क्लेमिंग कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 में करा है दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और ये केस जो है आपका कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो यहाँ पे ज्ञान वापी मॉस्क ने उन पेटिशन के अगेंस्ट में करा है कि नहीं, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द सेक्युलर करेक्टर ऑफ इंडिया, टू मेंटेन पीस इन इंडिया, अदरवाइज बहुत इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो मेजरली जो आपके इस टाइप के राइट एक्टिविस्ट है, राइट विंग एक्टिविस्ट है, दे क्लेम कि एक तो दे वांट टू चेंज द, दे हैव ऑलरेडी चेंज द रिलीजियस करेक्टर ऑफ अयोध्या। बाबरी मस्जिद जो थी उसको डिमोलिश करके वहां पे अब राम जन्मभूमि टेम्पल बनाया जा चुका है। अब हाउ इज इट पॉसिबल कि अगर 91 में था अयोध्या में बाबरी मस्जिद, 1992 में 6 दिसंबर, सो येस्टरडे ओनली, येस्टरडे वाज द एनिवर्सरी ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, तो आपकी यहाँ पे बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कैसे कर दिया गया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आने के बाद भी? बिकॉज इंटरेस्टिंगली बाबरी मस्जिद इज द ओनली केस जो एक्सेप्शन है आपका प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। वाई इट वॉज एन एक्सेप्शन? बिकॉज इसका जो केस है ये बिफोर इंडिपेंडेंस ही आपका कोर्ट्स के अंदर में था, सो इसका एक एक्सेप्शन क्रिएटेड था पहले से। इसके अलावा वाराणसी में जो आपका ये पर्टिकुलर है, दिस इज द ज्ञान वापी मॉस्क। अब व्हाट इज द स्टोरी ऑफ ज्ञान वापी मॉस्क? तो ये जो ज्ञान वापी मॉस्क है ये औरंगजेब ने कंस्ट्रक्ट किया था, एंड इट इज बिलीव इट हैज बीन क्रिएटेड ऑन द कृष्ण जन्मभूमि। सो दिस पर्टिकुलर टेम्पल जन्मभूमि, this particular mosque has been created after destroying the temple of Lord Krishna. तो ये एक disputed site है। थर्ड disputed site is in मथुरा। मथुरा के अंदर में इट इज द शाही ईदगाह मॉस्क, ईदगाह मॉस्क। ओके सॉरी, ज्ञान वापी वॉज नॉट कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा में जो है दिस इज द कृष्ण जन्मभूमि। ओके, एंड योर वाराणसी इज on a Shiva temple. So it has been created, constructed after destroying a Shiva temple, which you can see if you go, if you will go to Varanasi, if you go to visit Gyan Vapi Mosque, you can see कि यहाँ पे एक टेम्पल को तोड़ के ही बनाया हुआ है, अभी तक वो विजिबल है। ठीक है, इसके अलावा एक सांभल करके जो प्लेस है यूपी के अंदर में, दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ वर्शिप। यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर मॉस्क है जो है शाही जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद। इट इज ऑल्सो क्लेम्ड कि यहाँ पर भी पहले एक टेम्पल था, हरिहर टेम्पल, हरिहर टेम्पल, एंड इट इज बिलीव टू बी द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ कल्कि, जो 10th अवतार होंगे विष्णु के कल्कि, उनका टेम्पल यहाँ पे, इट इज संभल इज गोइंग टू बी इन यूपी, इज गोइंग टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ कल्कि ओनली। तो यहाँ पे भी डिस्प्यूटेड, संभल इज अनदर मॉस्क अपार्ट फ्रॉम अयोध्या's बाबरी मस्जिद which was created, which was constructed by Babur. Okay, so this is the regarding your ज्ञान वापी mosque. नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो नाउ लेट्स लुक एट सम न्यूज फ्रॉम योर इंडियन एक्सप्रेस। सो डोंट क्रिएट न्यू क्लाइमेट ऑब्लिगेशन, इंडिया टेल्स आईसीजे। तो आपका जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है विच इज वन ऑफ द यूएन प्रिंसिपल ऑर्गन्स, यूएन का जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है, एंड इट इज द ओनली यूएन प्रिंसिपल ऑर्गन्स विच इज हेडक्वार्टर्ड इन योर द हाग इन नीदरलैंड्स। The other 5 are headquartered in New York, but this is headquartered in The Hague, Netherlands. 1945 में इसको हमने create किया था। This ICJ is also known as World Court or also known as your UN Court. तो World Court और UN Court भी हम इसे बोलते हैं। तो यहाँ पे अभी आपका एक केस चल रहा है जिसके अंदर में यूएन जनरल असेंबली ने एक आईसीजे में केस फाइल किया है, वेयर इट वांट्स टू नो कि जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी क्लाइमेट चेंज को लेके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं।
ओके, तो यहाँ पे इंडिया ने अपना जो भी इंडिया ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि कोई भी प्लीज डोंट क्रिएट न्यू क्लाइमेट ऑब्लिगेशन। पहले से जो क्लाइमेट ऑब्लिगेशंस है उसी के अंदर में वी वांट यू गिव अ जजमेंट रिगार्डिंग दोज ऑब्लिगेशन, किस कंट्री की या किस सेट ऑफ कंट्रीज की, डेवलप का, डेवलपिंग का, लीस्ट डेवलप कंट्रीज का क्या क्या ऑब्लिगेशन है, ओनली डिस्कस दोज इन दिस पर्टिकुलर जजमेंट एंड डू नॉट गो बियॉन्ड इट। तो इंडिया ने अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू प्रोवाइड करा है इसके अंदर में। अब यू शुड नो दिस कि आईसीजे के अंदर में देयर आर 193 मेंबर कंट्रीज, तो जितने भी यूएन मेंबर्स होते हैं दे आर आल्सो मेंबर्स ऑफ द आईसीजे स्टैट्यूट, बिकॉज वो यूएन चार्टर के साथ ही अटैच होता है। इसके अंदर में यू हैव 15 जजेस, तो 15 जजेस होते हैं एंड 15 जजेस हैव अ टेन्योर ऑफ 9 ईयर। 9 ईयर का टेन्योर होता है, दे कैन बी रीअपॉइंटेड ऑल्सो। एंड इंटरेस्टिंगली अभी आपके ही एक इंडिया से जज हैं दलवीर भंडारी, जो अपना सेकंड 9 ईयर टेन्योर जो है वहां पे अभी सर्व कर रहे हैं। 2012 से वो वहां पे जज हैं, तो यू कैन सी ही इज गोइंग टू बी अ जज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो 2030 तक ही इज गोइंग टू बी अ जज देयर, दलवीर भंडारी। सो 15 जजेस, 9 जजेस बेंच होते हैं, 9 ईयर के लिए अपॉइंट किया जाता है, और ये 15 जजेस अपॉइंट किए जाते हैं बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ यूएनजीए एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। दोनों के अंदर में देयर शुड बी एब्सोल्यूट मेजोरिटी, यानी 50% प्लस यहाँ पे भी और 50% प्लस यहाँ पर भी अप्रूवल होता है, तभी किसी को आप जज बना सकते हो। एंड आउट ऑफ द 15 जजेस, one of them is declared as a ICJ president, and currently the ICJ president is Nawaf Salam. Nawaf Salam is the current ICJ president, who is usually the one of the judges, जो एक जज को ही इनमें से अपने जजेस ही अपने बीच में से एक को आईसीजे का प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर आईसीजे। मूविंग ऑन टू द सेकंड न्यूज, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, प्लेटफॉर्म्स लाइक प्रगति। तो यहाँ पे प्रगति जो आपका एक गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, इसका फुल फॉर्म भी हम स्टडी करेंगे। सो इसको अभी ऑक्सफोर्ड की एक स्टडी ने यहाँ पे अप्रिशिएट करा है फॉर रिजॉल्विंग many stall projects of infrastructure in India. तो प्रगति stands for your proactive governance and timely implementation This is the full form of प्रगति। तो ये जो प्रगति है, this is a basically what it is a digital basically a digital dashboard। डैशबोर्ड क्या होता है, किसी भी आप वेबसाइट पे जाते हो तो फ्रंट पेज पे समवेयर यू वुड सी कि एक कुछ चार्ट टाइप दिख रहा है, जहां पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो होंगे उनका प्रोग्रेस होगा कि भाई 120 प्रोजेक्ट्स इस स्टेज पे है, 200 प्रोजेक्ट इस स्टेज पे चल रहे हैं, 300। तो दिस इज बेसिकली व्हाट अ डैशबोर्ड, जो बेसिकली प्रोग्रेस शो करता है किसी भी चीज की। सो यहाँ पे प्रगति के अंदर में व्हाट दे आर चेकिंग इज कि बेसिकली जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के, इंपॉर्टेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट जो हैं वो किस स्टेज के ऊपर पे, उन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की ये प्रोग्रेस को क्रॉस चेक यहाँ पे करता है। सो दिस प्रगति प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च इन 2015। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, और ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर में ही वर्क करता है। ओके, रिमेंबर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर में ही वर्क करता है। और यू हैव योर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, तो जितने भी आपकी वेबसाइट होती है यही वो बॉडी है जो उनको मेंटेन करता है, ऑपरेट करता है, मेंटेन करता है, एनआईसी। ठीक है, तो एनआईसी इज द बॉडी जो गवर्नमेंट के आपकी इन पर्टिकुलर वेबसाइट्स को मेंटेन करता है। तो इस वेबसाइट को भी, आपका प्रगति प्लेटफॉर्म को भी ये एनआईसी ही मेंटेन करता है, एंड इट इज बेसिकली अंडर अ पीएमओ। व्हाट इट्स ट्राई टू अचीव इज ई ट्रांसपेरेंसी, कि आपको ऑनलाइन सारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ई ट्रांसपेरेंसी, ई अकाउंटेबिलिटी, अगर सब कुछ सबको दिख रहा है कि किस लेवल पे कहाँ पे इश्यू क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म भी क्रिएट होता है। इंटरेस्टिंगली इसके अंदर में आपकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो डायरेक्टली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की कहाँ पे क्या इश्यू आ रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली उसको हैंडल कर सकते हैं वहां से। तो मेजरली जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं वो डायरेक्टली मॉनिटर होते हैं आपके फ्रॉम द पीएमओ लेवल, जिससे ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज होती है, एंड एज वेल एज योर फील्ड वर्कर्स जो फील्ड ऑफिशियल्स हैं दे आल्सो बिकम अकाउंटेबल एट द हाईएस्ट लेवल। ओके, 3 टियर सिस्टम यूज किया जाता है इसमें। 3 टियर सिस्टम है, 3 लेवल पे इसके अंदर में लोग इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट लेवल इज द पीएमओ ओनली, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऑफिशियल्स हो जाएंगे। उसके बाद यूनियन के सेक्रेटरीज, यूनियन लेवल के जो सेक्रेटरीज होंगे, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रोजेक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, उसके जितने भी सेक्रेटरीज होंगे, यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरीज, दे वुड बी देयर। एंड स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरीज होते हैं, हाईएस्ट ऑफिशियल्स
आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं चीफ सेक्रेटरी होते हैं स्टेट में, और वो भी 3 tier सिस्टम का पार्ट होते हैं। और दैट इज हाउ योर दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म प्रगति फंक्शंस, एंड दिस हैज बीन एबल टू क्लियर मैनी बैकलॉग्स, एंड जो बहुत सारे आपके स्टॉल प्रोजेक्ट्स थे उनको वापस से इन्होंने इनिशिएट करने के लिए, उनको स्पीड अप करने में इसने बहुत हेल्प करी है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट हैज बीन नाउ बीन एप्रिशिएटेड। ओके, now let's finally look at a particular news from Indian Express which is regarding the Supreme Court hearing process, कि सुप्रीम कोर्ट में आपको तारीख पे तारीख जो मिलती है वो प्रोसीजर क्या है। एक चीज आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए कि ये कौन डिसाइड करता है कि ये जो पर्टिकुलर केस है जो सुप्रीम कोर्ट में आया, जैसे अभी अगर सांभल उत्तर प्रदेश में जो मॉस्क का इशू है, अगर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो रही है तो हु इज गोइंग टू डिसाइड कि ये पर्टिकुलरली केस जो है ये किस बेंच को सुनना है, किन सेट ऑफ जजेस आर गोइंग टू लिसन टू दिस पर्टिकुलर केस। तो ये सारी जो चीजें होती है इट इज डिसाइडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको जिसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टर। रोस्टर इज बेसिकली जिसमें आपकी अटेंडेंस होती है, तो उसमें ही इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर, विच इज बेसिकली सीजीआई इज गोइंग टू डिसाइड विच केसेस आर टू बी हर्ड। ये डिसाइड करना कि केसेस कौन से सुने जाएंगे, विच केसेस आर टू बी हर्ड, विच केसेस आर टू बी लिसन टू। तो ये केसेस जो कौन से सुने जाएंगे ये भी सीजीआई डिसाइड करता है, एंड विच टाइप ऑफ केसेस आर टू बी हर्ड, विच टाइप ऑफ केसेस are to be heard. This is also going to be decided which types of cases are to be heard on which day. तो मंडे टू सैटरडे आपका फंक्शनिंग रहता है, तो इसमें किस दिन में क्या आपको कौन सा केस किस दिन हेयर करा जाएगा ये भी डिसाइड। लाइक फॉर एग्जांपल मंडे को अपील सुने जाएंगे, कोई भी फ्रेश केसेस हैं तो वो सिर्फ वेडनेसडे थर्सडे को केसेस को सुने जाएंगे, ये सभी सीजीआई डिसाइड करता है। सो इट इज नॉट इन आवर परव्यू दैट वी हैव टू रिमेंबर कि किस दिन क्या केसेस सुने जाते हैं। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आल्सो डू नॉट कम इन योर एग्जाम, एंड ऑल्सो दे कैन नॉट कम इन योर एग्जाम बिकॉज हर सीजीआई अपने हिसाब से अपना सिस्टम करता है। जैसे ये पर्टिकुलर आप सुनते हैं, ये पर्टिकुलर केस या ये न्यूज ही इसलिए आई है बिकॉज जो नए आपके सीजीआई आए हैं 51st सीजीआई, अगेन आई एम नॉट नेमिंग हिम, यू कैन नेम द करंट सीजीआई हु इज द 51st सीजीआई ऑफ इंडिया, यू कैन नेम हिम। ठीक है, तो इन्होंने अपना डिफरेंट डेज पे डिफरेंट चीज को अलॉट किया गया है, और मेजरली ही इज डीलिंग विद योर एसएलपीस, तो इन्होंने प्रेफरेंस दी है एसएलपीस को। व्हाट आर एसएलपीस? तो एसएलपी स्टैंड फॉर योर स्पेशल लीव पिटीशन, दे स्टैंड फॉर स्पेशल लीव पिटीशन। और ये एसएलपी जो है ये आपके आर्टिकल 136 के अंदर में प्रोवाइडेड है, आपके 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट स्पेशल लीव पिटीशन। अब यहाँ पे ये लीव क्या छुट्टी होती है? नहीं, लीव का यहाँ पे मतलब होता है परमिशन, की स्पेशल परमिशन मिल रही है आपको पिटीशन करने की। तो व्हाट इज दिस एसएलपी? तो एसएलपी एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है, इट्स अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ पावर टू सुप्रीम कोर्ट टू एक्सेप्ट अपील, पावर टू सुप्रीम कोर्ट टू एक्सेप्ट अपील इन कोर्ट। तो हाई कोर्ट से आपके जो भी केसेस आ रहे हैं उसकी अपील को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है अंडर आर्टिकल 136। तो ये होता क्यों है? तो रिमेंबर दिस, जब आपका कोई केस होता है लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जाता है, तो हाई कोर्ट इज ऑल्सो डिसीजन इज ऑल्सो फाइनल। हाई कोर्ट में जब आपको अपील करते हो आप और उसमें कोई डिसीजन आता है वो भी फाइनल होता है, और इसके बाद हाई कोर्ट डिसाइड करता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील की परमिशन मिलनी चाहिए नहीं, जिसको हम बोलते हैं लीव टू अपील। तो अगर आपको लीव टू अपील मिल गई तो अब आप ये सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली फाइल कर सकते हो, बट अगर आपको लीव टू अपील नहीं मिली है देन यू कैन नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट। अब आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, तो ओनली रेमेडी फॉर यू इफ यू फील लाइक यार माय केस इज स्ट्रांग, हाई कोर्ट इन सम प्रोबेबिलिटी माइट हैव डिसाइडेड इट इनकरेक्टली, उस सिचुएशन में आप आर्टिकल 136 के अंदर में आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, प्रोवाइडेड सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट्स योर अपील। और अगर आपका 136 में स्पेशल लीव पिटीशन एक्सेप्ट हो जाता है देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ नॉर्मल अपील। तो जैसे कोई भी एक अपील होती है इट इज कन्वर्टेड इनटू अ सिंपल अपील, बट रिमेंबर इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं अलाउ करता यू हैव नो रेमेडी अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट। ओके, रिमेंबर ये जो एसएलपी होती है स्पेशल लीव पिटीशन, ये सिविल केसेस एज वेल एज क्रिमिनल केसेस दोनों में आपके पास में रहती हैं। ठीक है, अगर हाई कोर्ट का जजमेंट है उसमें 90 डेज के अंदर में आप एसएलपी फाइल करते हो, और अगर एसएलपी रिफ्यूज कर दी गई है बिल्कुल ही तो आप 60 डेज के अंदर में आपको ये फाइल करनी पड़ती है, उसके बेसिस पे आपको ये आगे की परमिशन मिलती है या अलाउ करी जाती है। ठीक है, अब आई थॉट कि यहाँ पे मैं आपको एक बार ये और बता देता हूं कि
आपका जो प्रोसीजर क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में। सो अगेन इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाता है तो कैसे डिसाइड होता है कि केस सुना भी जाएगा या नहीं सुना जाएगा। सुना जाएगा तो फिर तारीख पे तारीख मिलती रहेगी, बट व्हाट इज एग्जैक्टली द प्रोसीजर। सो ऑल यूजुअली हम सी द फ्रंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, हम जो सामने का फंक्शनिंग है वो देखते हैं, जुडिशियल साइड देखते हैं, बट देयर इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑल्सो। एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड हो जाएगा, एक जुडिशियल साइड हो जाएगा। जुडिशियल साइड है जो आपका फेस है सुप्रीम कोर्ट का, बट बैक बैक ऑफिस में क्या काम चलता है वो दैट इज द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और जो बैक एडमिनिस्ट्रेशन होता है इट इज अंडर द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री इज द प्लेस जहां पे सारे रजिस्ट्रेशन का काम होता है, फंक्शनिंग का काम होता है, विच इज हेडेड बाय अ सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जनरल। तो द पर्सन विच हेड्स अ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री इज द सुप्रीम कोर्ट सेक्रेटरी जनरल, जो डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं टू द सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अंदर में प्रोसीजर क्या चलता है। तो सबसे पहले जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स होते हैं, सो रिमेंबर नॉट एवरी लॉयर, इवन दो आप एडवोकेट हो, आपने बार काउंसिल कर दिया, यू कैन नॉट गो एंड फाइल अ केस इन सुप्रीम कोर्ट। ओनली सर्टेन पीपल जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड डिक्लेयर हैं, जो एक सर्टिफिकेशन एग्जाम के बाद डिक्लेयर किए जाते हैं, ओनली दे कैन फाइल अ केस। तो AOR है वो केस फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अंदर में देयर इज अ पर्टिकुलर ऑफिस नोन एज डीलिंग असिस्टेंट। देयर इज एन ऑफिस नोन एज डीलिंग असिस्टेंट। ये जो डीलिंग असिस्टेंट होता है ये यहाँ पे डिसाइड करता है कि ये पर्टिकुलर जो केस है ये एडमिसिबल है या नहीं है। नॉट इन द सेंस कि इसके मेरिट्स क्या है, बट ऑन द बेसिस कि इसके अंदर में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, नेम गलत हो कहीं पे, वकालतनामा फिल प्रॉपर्ली फिल नहीं कराए, एडवोकेट एंड रिकॉर्ड के पास में प्रॉपर इसमें एलिजिबिलिटी थी या नहीं थी, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है भी या नहीं है, कोई स्पेसिफिकली पेटिशन के अंदर में कोई टेक्निकल डिफेक्ट तो नहीं है। तो ऐसा कोई डिफेक्ट होता है तो वो वापस से फाइल रिटर्न कर जाती है और उसको 90 डेज के अंदर में आपको क्योर करके उस डिफेक्ट को खत्म करके वापस से अपनी फाइल करनी होती है। ओके, डीलिंग असिस्टेंट के बाद ये पर्टिकुलर फाइल जाती है आपके लिस्टिंग डिपार्टमेंट के पास। लिस्टिंग डिपार्टमेंट के पास में ये फाइल जाएगी आपकी। अब सो एज द नेम सजेस्ट दिस डिपार्टमेंट इज टू लिस्ट द केसेस। और लिस्टिंग डिपार्टमेंट बेसिकली इस पर्टिकुलर केस को लिस्ट कर देता है, यानी वो एक पर्टिकुलर डेट प्रोवाइड करता है, तो इट गोज टू द सुप्रीम कोर्ट बेंचेस। तो यहाँ पे लिस्टिंग डिपार्टमेंट, तो व्हाट टाइप ऑफ केस इट इज, जिस बेसिस पे कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि इस दिन पे इस टाइप के केस सुने जाएंगे, अ पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट बेंच इज आल्सो given by the supreme court कि this particular judges bench are going to hear the cases of taxation, this is going to listen to criminal cases etc. तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट अगर केस की हेयरिंग स्टार्ट करता है तो इट सेंड्स नोटिस टू द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जाता है कि भाई आपके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ है, प्लीज प्रोवाइड योर रिप्लाई। तो इसके बाद नोटिस सेंड हो जाता है एंड उसके बाद नोटिस का रिप्लाई आता है, तो फिर केस की हेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। और ये केस हेयरिंग इज द स्टेज जहां पे आपको तारीख पे तारीख मिलती रहती है। दिस इज द प्लेस जहां पे तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख मिलती है और फाइनली फिर आपका केस का वर्डिक्ट आ जाता है। ओके, सो इफ यू आर लकी 5 to 6 इयर्स के अंदर में, 5 to 6 इयर्स के अंदर में आपको एक केस वर्डिक्ट मिल जाएगा इफ यू आर लकी, नहीं तो इसमें कई साल भी लग सकते हैं। बट दिस इज हाउ योर सुप्रीम कोर्ट बेसिकली फंक्शंस। ओके, okay students, so we are done with today's news analysis. I hope this initiative have been useful for students who are giving your ALET and who had given your CLAT examination this year. In case you are a student for next year, my advice to you all would be that keep following this news analysis because your newspaper reading is very important to clear your CLAT and ALET examination, because these newspaper reading not only helps you for your GK but also help you for your English and reasoning sections also. Okay, and also again I would like to wish you all the best for your tomorrow's examination. Please try to give your best, not try but please give your best only, and I hope you come out with flying colors. Okay, so with this best wishes message I would like to end this particular class. That's it from my side. Thank you and have a very nice day.